And so we are back on our life mindset in action. And today I have this wonderful person with me, Dr. Meenu Singh, who is a clarity coach, a mindset coach, a certified life coach. And today we thought, let's continue a chit chat on our life and let's discuss some ideas on self-care. Cool. Let's wait for 1 minute or 2 minutes to let people know we are live. Till then, how's things going on your end, Meenu? How are you? How's the weekend going? I'm very well. Weekend was good. So there is something which I have started. I think some of your audience might know, or at least you are aware of, right? I'm doing a 40 days program, which is 40 days for life. And every day we have to get up at like 4:30 and get onto a particular session, which starts sharp at 4:44. Yeah. So life has been great because we started 4 days back. And every day, first day it was a struggle to get up because literally I got up every hour to see that I should be on time and all that. However, now it is, becoming a part of my daily circadian rhythm. So it is getting better. And if you get up at 4 a.m., as you know, right, it is, it's like half day for me by now. Great. So things have been good. That's a great initiative, and I would like to tell everyone that I've also joined Meenu in that. And getting up at 4:44 initially felt like a big task. But once you start, Yes. and the first thought of the day is like a motivational thought from Meenu, it is really, really great. And particularly today's session was really powerful, really wonderful. And if anyone wants to join, we'll drop in a link in the comments or stories later on. So you can join us on a 40 days for life journey and get up at 4:44 a.m. Change your life by that. We would be happy to have some audience from here also if they could. Yeah, exactly. So some people have joined. Hello, Srujan. Hello, Arindam. Hello, Mirgu. Great. So what do you say, Meenu? Let's start? Or let's, Yeah. we're going to wait for some time? I guess we can. Yes. Okay. We can get started. Cool. So today our topic is prioritizing self-care for busy professionals. Like, everyone who's in our circle, who's around us, they are busy working corporate life and we get under a lot of stress. And the last thing that we cater to is self-love and self-care. So today we are going to talk on that. So let's start with what's your idea of self-care, Meenu? What do you think? What comes to your mind? Why should we talk about self-care? What is self-care? Let's start with the big question in the room. So, if we say the word care is you have to give empathy, you have to be compassionate about whomsoever you are caring, right? And self-care is you have to have the same empathy, same compassion, same attitude that with kindness that you treat yourself. That is self-care. It could be as simple as that, you enjoy whatever you're having right then and there, or else it could be as that something happened in life and you start beating yourself on and self-sabotaging. Instead of that, you say, okay, it's fine. It's okay. It happens. That is also a form of self-care and not like I have to go to spa. मुझे spa जाके बहुत सारे पैसे खर्च कर ही मुझे self care मिलेगी. ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में. Correct. What do you think? I think like अगर हम तीन पैरामीटर से बात करें तो सेल्फ केयर we can divide it into physical, emotional and mental well-being. If you are giving time towards your physical, mental and emotional well-being, that is self-care. अब उसके लिए if someone wants to go to a spa, go to a gym, well and good for them. If you just want to just walk your dog, that's also great. जिस भी तरीके से you can maintain your sanity, you can maintain your well-being. That comes in self-care, right? Yes. So, but there is one more question that I want to ask you कि why are we talking about self-care today? क्योंकि I think अगर आप देखो आज से 15-20 साल पहले no one was talking about self-care. No one wanted to discuss around this thing. So what happened now? Yeah, to be frank, पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी and they were so busy doing physical work that by the time they were going to bed, they were super tired and there was no time to think in here कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. रात आ गई है, सो जाओ, बस वही बहुत है. अभी क्या है, because of technology, because of inventions, because of a lot of comfort and convenience around us, we have a lot of free time and there is physical labor which has gone very down.
mainly people are doing mental work, right? And mental work is something, for some it might be tiring, but for some it is like, okay, abhi aur kya? Your brain wants to do something. Right. And then you start thinking, okay, let me do something else. So either I start worrying, or I should say, okay, I should give time to myself and I should start, thinking of spending some time over there. तो stress ज्यादा है because हमारे पास बहुत time है सोचने के लिए. Yes. और ज्यादातर लोग negativity की तरफ drift हो जाते हैं because no one teach us or taught us कि how do you stay positive. वो कभी कोई नहीं सिखाता. नहीं. And it's a human nature कि whatever is going wrong, your brain goes there. है ना. तो स्ट्रेस इतना ज्यादा है, फास्ट पेस इतनी ज्यादा है, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट इतने हैं कि फिजिकल लेबर बहुत कम है, मेंटल स्पेस ज्यादा है, तो कुछ तो करना है ना. स्ट्रेस ले लो, स्ट्रेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू समथिंग एल्स. Correct. And I think there is also one point which comes into it कि peer pressure भी social media की वजह से, social media is playing a big role in that. तो peer pressure पहले भी था, but वो इतना visual नहीं था. But now because it's so visual, everyone's uploading those reels and you see that, okay, I am not getting my passport, I am not going on vacations, what is happening? Unnecessary, we start taking pressure and then we just self-care की तो बात ही नहीं हो रही, but we start going in the opposite direction altogether. Yes. Right. Yes. Yeah. And आपने जो बोला ना, even physical, emotional and mental well-being, all these three are very, very important. अगर आप physically अपने आप को फिट नहीं रख रहे हो, that means you are somewhere neglecting your own health. Right. And you are the main disc of, of that well-being of your family as well. तो अगर आप ही ठीक नहीं हो तो फिर आप बाकी लोगों को कैसे देखोगे? तो physical well-being is again important. That's part of self care कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या वॉक को जा रहे हो, as you said कि आप अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहे हो, ये कुछ तो करो जिससे कि बॉडी चलती रहनी चाहिए. It's not like you get up and you take yourself and put it in a chair and सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठे हो and then you're mentally so tired and stressed out and then you go back to bed. Correct. Yeah. Right. And emotional and mental so definitely is something which every one of us have to look into because many people are dealing with a lot of stress and anxiety. Yep. And there is also, because we talked about Instagram Reels and visual things, so one particular thing came to my mind, a little story, which everyone knows if you have traveled in a flight or if you have seen movies, people traveling in flight, you have seen that oxygen mask story, right? पहले अपना mask लगाना जरूरी है, then you can help other people. So why the self-care concept है? If you are not well, you're not fine yourself. आप और किसी की केयर कैसे करोगे? चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, you can't just go and perform your job well. And personal space, maybe if you're not fine, you can't take care of anyone in the family. So it goes both in the personal and professional circle. Good. And I think we should also, today since we are talking about this topic, we have to ask this question to ourselves and we'll probably try to put things together. What are the common barriers? Exactly. ऐसा नहीं है कि लोग अपना ध्यान रखना नहीं चाहते हैं. लोग अपना ध्यान रखना चाहते हैं, but क्यों नहीं रख पाते हैं? What do you think? I think सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर है कि ध्यान क्यों नहीं रख पाते, वो है हमारा द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज टाइम मैनेजमेंट. सबको लगता है अरे टाइम तो है ही नहीं, ये काम करने में टाइम लग जाता है, ऑफिस जाने में, ट्रैवल करने में, यहाँ सारी जगह टाइम लग जाता है, तो टाइम बचा ही नहीं लोगों के पास कि कहाँ से वो सेल्फ केयर करें. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार टाइम बहुत सारा है और उस टाइम में हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कैसे टाइम निकालते हो? आप क्यों बैठ के देख रहे हो किसी और की लाइफ और उससे क्यों एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है? तो टाइम है, उस टाइम को कहाँ लगाना है वो कॉन्शियस थॉट नहीं है. करेक्ट. प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है. आप रील देखने बैठते हो, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, आप कहते हो मैं भाई 2 घंटे की मूवी नहीं देखूंगी, मैं बिंज वॉच नहीं करूंगी, बहुत टाइम जाता है, एक सीरीज तो देख ही नहीं सकते, 2 दिन लग जाते हैं पूरा कंटिन्यूस देखा तो. बट वो रील पे बैठ के हम 4 घंटे बिता सकते हैं या फिर फेसबुक रील पे या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमें लगता है 10 सेकंड की तो बात है, 15 सेकंड की तो बात है, उसके बाद पता ही नहीं चलता. तो टाइम है बट हमें वो लगता है कि नहीं, हम शायद 10-15 मिनट देखेंगे और हो जाएगा, फिर उसमें टाइम ऐसा जाता है कि हमें कॉन्शियस थॉट नहीं आता. तो लैक ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर एम आई पुटिंग माई टाइम. Exactly. Absolutely. There is this thing, our mentor Siddharth Rajshekar says, time management का concept नहीं है, it is life management. अगर आपने अपनी लाइफ मैनेज कर ली, अपनी प्रायोरिटीज मैनेज कर ली, तो you don't have to worry about time.
क्योंकि टाइम तो इलॉन मस्क के पास भी उतना ही है, हमारे पास भी उतना ही है. You just have to divide that in a right way. On that, I think even my company CEO says one thing. He says कि वर्क लाइफ वो नहीं होता है, बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता है, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होता है. Correct, correct. That's a nice concept. आप अपने ऑफिस में ले जाके सब्जी थोड़ा ना काट सकते हो, लेकिन सब्जी काटते काटते आप ऑफिस पर ले सकते हो. Thanks for that. So it's about कि how do you integrate it in such a way that कि जब आप जो काम करो वही करो, अगर फोकस से करना है तो. और there are certain things where your focus is not required. Then give your focus to something else and involve your other senses if in case that has to be done. आप ये सोचो कि भाई मैं जब पूरी दुनिया से फ्री हो जाऊंगी तभी मैं सेल्फ केयर करूंगी, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं. और एक परफेक्शनिज्म भी लगता है लोगों को, है ना, कि पहले वही जो आपने बोला, दुनिया से फ्री हो जाओ या फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाए घर में. अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस में सब कुछ, सारे शेड्यूल्स परफेक्ट हो जाए, घर के सारे रूटीन्स फिक्स हो जाए, उसके बाद हम सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालेंगे. बट आई थिंक आइडियल केस सिनेरियो में परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शनिज्म. कुछ होता ही नहीं है. देयर इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल. करेक्ट 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 करेक्ट. राइट. और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम भी होगा ना, तो आप कुछ ऐसा करोगे जो कि अनप्रोडक्टिव है, बट आपको लगेगा मैं खुद के लिए टाइम कैसे दे लूं. मतलब इट ब्रिंग्स दैट गिल्ट इन यू. इट्स लाइक how can I just take time and sleep, or how can I just read my favorite book, or how can I just relax. Okay, even if वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना हो, अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना हो, आप होकर भी आओगे ना, आपको दिमाग में गिल्टी फील होता रहेगा, अरे यार घर पे ये नहीं किया, वो नहीं किया. That guilt shouldn't be there. Even you need refreshment, right? You have to get energized and rejuvenated. So we shouldn't feel that guilt or shame. Absolutely, absolutely. That is the thing. And I talk to a lot of people and they say कि self care जो है, this is a trendy thing. ये ट्रेंड की बात है, या it's a luxury thing. और ये आम आदमी के लिए तो ये चीज नहीं है. तो what do you think? What I feel is like कि luxury, मतलब आप इस पे लाइट थ्रो करो कि how is it self care not a luxury but a necessity in this time, particularly in this time, See, लग्जरी का मतलब होता है कि वो नहीं भी होगी चलेगा. नेसेसिटी इज समथिंग कि भाई नहीं होगी तो नहीं चलेगा. बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लिव सर्वाइवल. आई मीन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सर्वाइव आइडियली. जैसे कि रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, ये सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज हैं. बट उसके ऊपर कि अब मकान में तुम्हारा जो है 3 BHK है कि 5 BHK है कि भाई तुम्हारा 2 BHK का है, दैट इज अ लग्जरी, राइट, वेयर यू डिसाइड. बट in terms of care, you have to take care of yourself, because अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आप अपने घर में किसी की केयर नहीं कर सकते. And one of the things, I'll tell you one example. So our car was parked like for a week. My husband was out of town. फिर हम लोग बाहर निकले किसी काम के लिए, and he's like, he sensed कि अच्छा कार ठीक नहीं चल रही है. एंड हम फिर नियर बाई जो पेट्रोल बंक है वहां पे गए, एंड उन्होंने बोला एयर चेक करा. तुमने क्या करा लो. एयर चेक कराया तो पता चला पंचर है. अच्छा ठीक है. एक चेक करा, दूसरा. बेसिकली 4 टायर में, एक में 2 पंचर है, एक में 2 पंचर है, एक में 1 है. मतलब एक ही ठीक है. हमको जहां जाना था वहां जाने को लेट हो गया, एंड द इंटेंशन वाज कि हम बस अभी जाके आ जाएंगे. तो ट्यूबलेस टायर है, गाड़ी चल रही है, बट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू टेक अ लॉन्ग रोड, इट वुड नॉट वर्क. तो सेम थिंग है, आप अपने आप को पुश करते रहो. फिर एक टाइम आएगा कि वो बॉडी कर से कि बस बहुत हो गया. एंड देन लाइफ विल गिव यू, हाँ, लाइफ विल गिव यू अ सेटबैक कि अच्छा तुमको फलानी चीज डायग्नोज हुई है, और यू लुक एट योर हेल्थ रिपोर्ट, ओ माय गॉड माय कोलेस्ट्रॉल इज हाई, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमको जग जाते हैं. हमें लगता है अब हम योगा भी कर लें, अब हम वॉक भी कर लें. तो उतनी नौबत क्यों आने देना है यार, पहले शुरू करो ना. एब्सोल्युटली. वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डेली 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो, देन डॉक्टर वो आपसे 50 मिनट डेली के निकलवा लेगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आप डेली टाइम निकाल लो. एंड बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं. लाइक बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रैक्टिसेस, डू यू थिंक एनी अदर, देयर इज वन मोर थिंग, जब हम कॉमन बैरियर्स डिस्कस कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके सॉरी सेल्फ केयर, आई वेंट इनटू आवर लास्ट लाइन, प्रोक्रेस्टिनेशन याद आ गया. सेल्फ केयर में जो एक और चीज है, विच इज कि हमारे अपब्रिंगिंग में वी हैव नॉट बीन टॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मी टाइम. तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. And privacy and me time, ये दोनों concept are very foreign to our country.
मी टाइम बोलने से ऐसा समझ आता है हैशटैग वो मी टू वाला थी कि अरे भाई अब पता नहीं क्या अलग से कॉन्सेप्ट। हम जिस जिस जनरेशन में पले बड़े हैं, वी हैव नेवर सीन आर एटलीस्ट आर मॉम टू बी रेस्टिंग। तो हमें लगता है कि बीइंग वुमेन अगर तुम रेस्ट कर रहे हो वो इट्स अ क्राइम। मतलब हाउ कैन यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली ऑल द टाइम, स्पेशली इफ यू नो यू हैव स्पाउस, यू हैव अ किड और समथिंग। इवन इफ आप सिंगल भी हो ना, तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में जाता है। आप मी टाइम क्या होता है, हाउ कैन यू टेक रेस्ट? अगर खाली हो तो पढ़ाई करो, खाली नहीं हो, शादी हो गई है, तो फिर घर का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ घर पे करते रहो। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो अपब्रिंगिंग में है कि अच्छा हमने कभी देखा नहीं अपनी मम्मी को सेपरेटली रेस्ट करते हुए, तो हमें भी वो नहीं करना चाहिए। फिर वो गिल्ट फीलिंग आने लगती है। लेकिन वो वही है कि आप लोगों को समझ आने लगा है कि नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर देने से बहुत कुछ हो सकता है। जितनी डिजीजेस आज है उतनी कभी नहीं थी जो है हमारे पूरे मैनकाइंड के हिस्ट्री में। वो इसीलिए कि दिमाग इतना वेला है, तो भाई कुछ ना कुछ सोचना है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है और अपना ध्यान रखना नहीं है। इट हैज टू मैनिफेस्ट समवेयर। करेक्ट। आप अगर अपसेट हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, या आपको पता नहीं है हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस, इट विल मैनिफेस्ट इन द बॉडी। यू वोंट बिलीव, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा और आपके दिमाग में ये थॉट है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, योर you know subconscious mind will manifest it into a disease where you will be on bed for 2 months. ये बहुत बड़ा लॉजिक है। हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन तो इज लाइक, जब तक आप अगर उसको मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लो और यू नो गॉड फॉरबिड यू एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ, तब आप फिर कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। राइट। एंड जो आपने एग्जांपल दिया, उतने एंड तक जाने की जरूरत नहीं भाई, पहले हम समझ जाए कि हाँ भाई हमें अपना ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली। एंड जो आपने एग्जांपल दिया वो बहुत सही है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि आवर मॉम्स आर रेस्टिंग, आवर डैड्स आर रेस्टिंग, बट वी हैव सीन देम बर्निंग आउट। हमने ये जरूर फेस देखा है कि हमारे मदर फादर दोनों अपने काम से आ रहे हैं, यू नो दे आर एक्सट्रीमली टेंस्ड, वो बहुत बर्नआउट वाली स्टेज में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस भी होंगे कि वो मेडिसिन लेके भी अपने जॉब पे जा रहे हैं, मेडिसिन लेके खाना बना रहे हैं, बट वो स्टेज बर्नआउट वाली स्टेज हो गई ना। अगर उससे पहले आप 5 मिनट निकाल के, सपोज आपको, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, कि आपको सपोज किसी को सब्जी लेके आनी है, मार्केट सब्जी लेने जाना है आपको 5 बजे, आप 4:30 बजे 5 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले लो। उससे पहले कोई भी जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, अगर आप उसमें हैबिट स्टैकिंग, जो हमने अपने लास्ट लाइव में बात करी थी प्रोक्रेस्टिनेशन में, अगर आप हैबिट स्टैकिंग यूज करो और 5-5 मिनट का रेस्ट उसमें थोड़े एक्टिविटीज के बाद डाल दो, ताकि बस थोड़ा सा यू नो यू जस्ट रिजुविनेट योर एनर्जी थ्रू आउट द डे, देन दैट विल हेल्प। व्हाट डू यू थिंक? दैट्स ट्रू। एंड एनर्जी मैनेजमेंट ही है यार मेरे हिसाब से, जो टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट की भाई तुम्हारी सबसे ज्यादा एनर्जी कब रहती है, एंड दैट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तुम बोलो कि नहीं सुबह उठ के ही जिम जाना है घंटा भर, तभी लाइफ में मतलब बेटर होगा या तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। इफ आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, आई वुड हेट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई विल गिव यू 100 एक्सक्यूजेस कि मैं क्यों नहीं उठ सकती। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट अर्ली राइजर, इट्स ओके, तुम शाम को जिम जाओ, बट अपना ध्यान रखो। अगर शाम में यू आर एक्टिव, ट्राई टू डू यू नो लिफ्ट्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तुम्हें जो समझ आता है। और जिस टाइम ज्यादा एनर्जी है उस टाइम आप कुछ भी करोगे ना, इट वुड बी मोर प्रोडक्टिव, रादर देन कि जब आपकी एनर्जी कम है तब आप स्ट्रेन करें। जैसे सुबह अगर आपसे नहीं उठा जाता और कोई आपको बोले घंटा भर आप जिम जाओ, तो वो ट्रेडमिल पे ना स्पीड में आने में ही आपको 20 मिनट लगेंगी। और अगर आप शाम में जाओ तो वो 20 मिनट्स में यू विल बी लाइक सुपर एक्साइटेड कि आज मैंने इतना कुछ कर दिया, आज मैंने इतनी हाई स्पीड पे चला लिया अपने आप को। तो अपनी एनर्जी मैनेज करो, उस हिसाब से अपने काम मैनेज करो, एंड देन थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। Cool. So let's move on to the next phase, की the mindfulness exercises, the self-care exercises. And उससे पहले I'll just quickly sum up the barriers which we discussed. So the common barriers which we discussed in self-care वो है lack of time, which we transformed into lack of clarity and lack of consciousness. Time management ऐसी चीज नहीं है, you have to think consciously and manage your time consciously. And you have to be careful about your priorities, कि आपके लाइफ के प्रायोरिटीज क्या हैं। आपके एनर्जी मैनेजमेंट इज अ टर्म which Meenu just coined, कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा we have to focus on energy management. And then now let's move on to you know simple things that people can incorporate in their daily lives, because अभी स्ट्रेस सबके लाइफ में है, बर्नआउट सबके लाइफ में है, सोशल मीडिया सबके लाइफ में है, एंड रील्स के व्यूज तो हर दिन बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो स्ट्रेस बढ़ रहा है। So what do you think? What would be the you know one basic thing people can do to overcome this thing? यार
of the thing which I personally do, which works for me, probably might work for you and your audience, is I am aware of what I am doing and where am I spending my time. Absolutely. And when I say being aware, it would be being in the moment. So like morning, I have a dog, I take him for a walk. तो मैं सिर्फ वॉक करते समय फिर अपने फोन को नहीं देखती रहती हूँ पूरे टाइम. इफ आई एम वॉकिंग, आई सी हाउ इज ही वॉकिंग, आसपास क्या हो रहा है. अच्छा, आज इस जो है पेड़ में इतने पत्ते थे, अब पतझड़ आ गया है, अब इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, आज आसमान कितना सुंदर है. सो आई लिटरली लुक अराउंड एवरीथिंग एंड आई एम अवेयर दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. आज हवा अच्छी है, या फिर आज सूरज की रोशनी पहले आई बाद में आई. तो if you are into that moment, then you are actually being present, which is a meditative state and the best state to be in. Correct. तो वो स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं होता उस समय. इस पल में स्ट्रेस हमेशा होता है कि फ्यूचर में क्या बुरा हो सकता है, वो सोच के अपने आप को परेशान करो, उसे स्ट्रेस कहते हैं. तो आप अगर अवेयर हो, being in that moment, that itself, or being aware, that itself is something which helps a lot to me, and I hope that might work for others also. Absolutely. I totally agree with that. Same thing, I also try to be aware in that moment. अब इसमें दो लेवल्स हैं या दो पार्ट्स, दो तरीके हैं करने के. या तो आप दिन में 15 मिनट निकाल के प्रॉपर साइलेंस में बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठ जाओ, और वहां से आप अपनी एनर्जी ले लो, है ना. या फिर आप दिन में, अगर आपके पास वो टाइम नहीं है, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास 15 मिनट का टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वर्क पे, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, या फिर आप जब काम कर रहे हो, तो उस समय यू बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट. उस समय यू बी कंप्लीटली अवेयर इन दैट मोमेंट, कंप्लीटली अवेयर इन दैट एक्टिविटी विच यू आर डूइंग. तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, डीप वर्क का कॉन्सेप्ट. आई थिंक आपको पता भी होगा. तो डीप वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आप ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें आप 101% उसी प्रेजेंटेशन में दिमाग लगा रहे हो. उस समय आपको ये चिंता नहीं है कि बगल वाला आपका कलीग क्या कर रहा है, आपको लंच में क्या खाना है, आपको शाम को कौन सी मूवी देखने जानी है, कौन सा सीरियल देखना है. नथिंग. आप केवल उस समय जो ब्लॉक आउट एवरीथिंग and you focus complete your 2-3 hours जो भी आपके हाई प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं, just focus that on deep work. और ये चीज आप घर पे भी कर सकते हो. इवन अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो या फिर आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर पे भी रह रहे हो, तो आई थिंक देयर इज वन एग्जांपल जो हम भी बात कर रहे थे पहले, कि सपोज अगर आप चाय ही बना रहे हो, तो पूरे ध्यान से देखो कि कब उसका कलर बदल रहा है, कब क्या हो रहा है. फुल 101% अटेंशन उस पूरी चाय बनने पे देना चाहिए, राइट. तो माइंडफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. चाय बनाना तो मतलब आई डू दैट इन द मॉर्निंग. जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अच्छा अभी पानी बॉईल हो गया, उसमें जब चाय की पत्ती डालो तो कैसे धीरे धीरे रंग पूरे पानी में हो जाता है और पानी का रंग बदलता है. इट इज सच अ फुलफिलिंग थिंग टू सी, राइट. एंड अगर आप ऐसा बंदा हो जो चाय बॉईल होने के बाद उसमें दूध डालते हैं, द मोमेंट यू पोर द मिल्क एंड यू सी कि अच्छा इसका रंग कैसे बदल रहा है, इट इज सो नाइस टू सी दोज थिंग्स. एंड इट इज, for me, it is being in the moment, being aware, and just being focused. And that is something which is important. And another thing is कि physical body का movement बहुत important है. अगर आपके पास डॉग है तो ऑब्वियसली आपको जाना ही है वॉक पे, until आपका भाई सर्वेंट लेके जाता है या स्टाफ लेके जाता है. अगर वो नहीं है तो you have to take yourself for the walk. Correct. एंड द रीजन इज कि इवेंचुअली वॉट एवर, आई मीन आपके लाइफ का कितना भी ड्यूरेशन है, आप 60 साल जियोगे, 80 या 100 साल, वॉट एवर, वॉट विल टेक योर बॉडी इज योर मसल्स. एंड दे हैव टू मूव, दे हैव टू कीप इन द मूवमेंट, एंड दे हैव टू बी वर्किंग in order for you to continue doing your day to day work when you are at the age of 90 or 100. आप जितना मूव करोगे उतना आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, बेसिकली दीर्घायु जिसे कहते हैं. हमें ये बात समझ ही नहीं आती और हमें लगता है कि क्या जरूरत है, आज तो सैटरडे है, संडे है. आई पर्सनली से कि बॉडी को नहीं पता ना सैटरडे है कि संडे है. तो आप 1 घंटा के बदले, चलो ठीक है सुबह नहीं उठने का मन है, आप रेस्ट करना चाहते हो, करो, शाम को चले जाओ, बट कीप योर बॉडी, फिजिकल बॉडी मूविंग. एंड सुबह एज यू सेड कि मेडिटेशन के लिए अगर बैठ सकते हो टाइम निकाल के, नथिंग लाइक दैट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. आप सुबह में अपना फोन घर से लेके निकलते हो तो देखते हो ना पूरा चार्ज है. अब वो आधा चार्ज लेके अगर घर से निकलते तो आधे टाइम तो मतलब अंदर में वो रहता है, यार अभी खत्म हो जाएगी बैटरी, अभी खत्म हो जाएगी बैटरी, बस. तो अपने आप को चार्ज करने के लिए किसी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपको. वो किसी से, इट कुड बी योर सेल्फ, इट कुड बी योर हायर सुप्रीम, आई मीन गॉड, और आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आपके गुरु. कुछ नहीं तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ, आप अपने आप से कनेक्ट करो. धरती पर बैठो, वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग, आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट.
करेक्ट करेक्ट एंड वंस यू डू दैट यू फील चार्ज, लाइक तब आप चार्ज हो एंड देन यू कैन गो बाय योर डे टू डे एक्टिविटीज. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब मोबाइल में एक ही डंडा रहता है, कोई कॉल करता है तो कितनी गुस्सा आती है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट टू कम. करेक्ट 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 राइट. तो अगर आपकी खुद की एनर्जी लो है और आपने चार्ज नहीं किया अपने आप को, बी इट बाय डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, अवेयर माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर और व्हाटएवर, यू विल बी, आई मीन लिटरली एंशियस होल डे. कोई आपसे छोटी सी भी बात करे, आपको लगे तुमको समझ में नहीं आती है, अरे मे बी द पर्सन हैड आस्क्ड वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, बट इफ यू आर एट ईज, कोई बंदा 5 बार भी पूछे तो आप उसे हैप्पीली बता दोगे. करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट. एजिटेशन बहुत बढ़ जाता है अगर हम अवेयर नहीं, हाँ. और अगर हमारा रेस्टफुल माइंड नहीं है तो क्या होता है, जो कैओस, तो बाहर तो दुनिया में कैओस है ही, तो हमारे अंदर भी वो एजिटेशन इतना ज्यादा आ जाता है कि जैसे किसी ने कुछ पूछा एंड वी गेट ट्रिगर्ड, और वो तुरंत इंस्टेंटेनियस रिप्लाई शुरू हो जाते हैं वहां पर फिर. तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स कितने समझदार थे. उन्होंने कहा भाई सुबह उठो, अपना नित्य क्रिया करो, उसके बाद जाके पूजा में बैठो, और मतलब 5 मिनट या तो ये नो प्रदक्षिणा करो, या क्या बोलते हो आप लोग उसको, मतलब भगवान के आगे हाथ जोड़ के आओ, एटलीस्ट दिया देख के आओ, या फिर आरती लेके आओ. दैट इज नथिंग बट फ्यू मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस. जब भगवान के सामने हो तो भगवान को भी ना दर्शन दोगे, उन्हें ही ना देखोगे. लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम जाते भी है क्योंकि मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं, ऐसे किया और चल दिए. अरे वो 5 मिनट वहां खड़े होके देखो तो सही. और अगर आप ध्यान, यू नो, वो जो उसकी लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करो एटलीस्ट. राइट राइट. और अगर जो आपने पॉइंट बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो 10 मिनट अगर आप आरती पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपका मी टाइम है. उस समय आप कुछ और नहीं कर रहे हो, बिकॉज कोई वहां पे एक्चुअली तो कोई खड़े नहीं है. आप बस एक एनर्जी की तरफ अपनी वाइब्रेशंस प्रोसेस कर रहे हो, और वहां पे आप बिल्कुल उस समय अकेले हो, लाइक देयर इज नो वन. तो ये भी एक बहुत बढ़िया मी टाइम का कॉन्सेप्ट था जो पहले था, बट वी जस्ट फॉरगॉट इट इन बिटवीन. अरे हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही समझदार थे. आई स्टिल वंडर कि वो लोग कैसे, उन लोग इतना दिमाग लगाते थे. बट हमें क्या है, वो बातें हमें बताई गई है, लेकिन उसके लॉजिक्स कोई नहीं बताता है, तो हमें लगता है क्यों करना है, मुझे नहीं करना, मुझे भगवान में कोई बिलीव नहीं. अरे मत करो, अपने खुद के लिए तो टाइम निकालो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आरती मत करो, बट खुद बैठ के अगर आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हो तो इट्स, देयर इज नथिंग लाइक दैट. क्योंकि वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. लेकिन हम बने तो नेचर से ही है, राइट? तो अगर नेचर के जो हम बेसिक 5 एलिमेंट्स की बात करें, तो आई थिंक सदगुरु भी ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर आप अपने वीक को ऐसे डिवाइड करो कि किसी भी तरीके से आप उन 5 एलिमेंट्स में से किसी एक दिन जाके कनेक्ट कर लो. सपोज आपको गार्डनिंग पसंद है, तो आप जाके उसको अपने हाथ से आप इन्वॉल्व हो रहे हो गार्डन में, आप अपने प्लांट्स को थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो. या अगर हम आरती की बात कर रहे हैं, तो आरती का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 5 मिनट उस लाइट के आगे बैठ रहे हो, हाँ, उस हीट के आगे आप बैठ रहे हो, उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो. ऐसे ही अगर आपके आसपास कोई पार्क है, आप नेचुरल पार्क में वॉक करने चले जाओ, रिवर बॉडी है आसपास बहुत बढ़िया, वहां चले जाओ. तो अगर आप दिन में कुछ, मतलब अगर आपको वीक में भी टाइम नहीं मिल रहा है, वीकेंड पे फैमिली को लेके चले जाओ ना, जस्ट गो एंड एंजॉय एंड इमर्स विद द नेचर फॉर सम टाइम. So that is, I think, the best self-care thing that could happen. तो देखो, अगर इतना सब भी नहीं कर सकते, वही मैंने बोला ना, आरती लेना है. आरती लेना मतलब आप अग्नि के सामने जाके उससे कनेक्ट कर रहे हो, वो दीपक की लॉ को देख रहे हो. यू आर एक्चुअली डूइंग शुद्धि बाय अग्नि. वो लॉजिक है. लेकिन हमें क्या लगता है, मम्मी ने दिया जलाए, मैं क्यों जाऊं, और मैं क्यों ही जाऊं, या मैं क्यों करूं अगर मम्मी बीमार है. अरे भाई, इट इज नॉट दैट, इट इज समथिंग, इट हैज अ वेरी डीपर मीनिंग. इफ यू अंडरस्टैंड दैट, तुम खुद दिया लगाओगे सुबह शाम की, भाई मेरा शुद्धिकरण हो रहा है अग्नि से. Absolutely, absolutely, absolutely. So true. तो हमने बहुत सारी बातें करी जो हम कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं हमें, उनके पास उनके खुद के भी रीजंस होंगे, या उनके खुद के तरीके होंगे. सो वी आर जस्ट शेयरिंग व्हाट वी फील और व्हाट वी डू. आई एम श्योर देयर विल बी टन्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू. कुछ भी करो, अपना ध्यान रखो, अपनी मेंटल वेलबीइंग, फिजिकल वेलबीइंग और इमोशनल वेलबीइंग को बस ये के ऊपर फोकस करो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और अगर हम अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि सेल्फ केयर में एक बहुत बड़ा फैक्टर अवेयरनेस का आता है कि आप इमोशनल, मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग में अगर आप तीनों चीजों में अवेयर भी हो कि व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेल्फ केयर. कि ऐसे नहीं अगर आप सोशल मीडिया खोला और डिजिटल कंजम्पशन आप बिना अवेयरनेस के करे जा रहे हो. अगर आप वहां पर ब्लॉक कर सकते हो वो टाइम, और उस टाइम को ब्लॉक करके बस फोन साइड में रख के बैठ जाओ. सेल्फ केयर का बहुत सिंपल सा तरीका है. नो, देयर इज वन वेरी सिंपल थिंग विच आई डू इज, कुछ नहीं है, इफ यू हैड अ बिजी स्ट्रेस वर्किंग डे, सिंपल बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ, आंख बंद करके 5 गाने सुन लो. वो भी सेल्फ केयर हो जाता है. इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन, है ना?
बट वो जरूरी है, यू हैव टू स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ, क्योंकि उससे भी आप जिस भी तरीके से आपको एनर्जी मिल रही है, जस्ट ट्राई टू टेक दैट। हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हाट यू सेड इज वेरी ब्यूटीफुल कि आपको अगर गाना सुन के अच्छा लगता है तो आप गाने सुन रहे हो, किसी को शास्त्रीय संगीत सुन के अच्छा लगता होगा, वो कर रहा है। एंड बिकॉज हमारे पास सो कॉल्ड डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा है हमारी जिंदगी में, लाइक लिटरली इट इज वन ऑफ द फैमिली, आई वुड से, कि जैसे फैमिली मेंबर होते हैं ना, कि मम्मी पापा भाई बहन और इंटरनेट, ऐसा है। इंटरनेट नहीं रहता तो लोगों को ऐसा लगता है जिंदगी में पता नहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आज इंटरनेट नहीं है, आज इंटरनेट नहीं है। तो अगर इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है तो मेक यूज ऑफ इट। द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, यू डोंट रियलाइज कि उसका इतना डीप इम्पैक्ट पड़ता है, तो यूज इट फॉर योर एडवांटेज। ठीक है भाई, मुझे नहीं समझ आता, मैं खाली मेडिटेशन क्या होता है मुझे नहीं पता, देयर आर टन्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन, तुम जिसे फॉलो करते हो उसने भी बना रखा होगा, नहीं तो बहुत कुछ है। सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन के म्यूजिक भी आते हैं, तुम यूट्यूब पे वो लगाओ कान में और खाना बनाओ या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो करो, बिल्कुल। यू वॉन्ट रियलाइज की हाउ मच इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन योर हेड, राइट। एंड फूड गेट्स, और अगर आप मेडिटेशन अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो और आपको दिमाग, लोगों का क्या मतलब होता है कि मेडिटेशन में बैठे तो कुछ और सोचना नहीं है, अरे योर ब्रेन कीप्स वर्किंग ऑल द टाइम, अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, बस बैठे रहो, काम ही वही है ना। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि मेडिटेशन होगा तो आप थॉट लेस हो जाओगे, ऑब्वियसली वो होगा आफ्टर सर्टेन एज, जब तुम थोड़ा सा मेडिटेशन में और हायर लेवल अटेन कर लोगे, बट अंटिल देन बस बैठो। लेकिन हमसे नहीं बैठा जाता, हम 5 मिनट किसी का वेट कर रहे हैं और मेरा फ्रेंड नहीं आया, आई विल स्टार्ट यूजिंग एंड स्क्रोलिंग माई फोन। वी कैन नॉट बी विदाउट इट। कोई कहते 10 मिनट खड़े होके बिना कुछ किए मेरा वेट कर लो या शांत रहो, वी कांट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि हम फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने साथ रहने में दिक्कत होती है, हमें लगता है नहीं हमारा दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहना चाहिए। Correct, absolutely. Cool. So we have talked a lot on this. So just to wrap up, what is that one particular giveaway or one particular takeaway you want our audience to take? कि अगर कुछ भी नहीं तो just do this thing and practice it for 1 week and see आपकी life कैसे improve हो सकती है. So what's that tip of yours? Then अच्छा ठीक है, मैं पानी पीने जा रही हूँ तो मैं बताती हूँ. So what I do is every day when I sit for work, ये मेरी water bottle है, I fill this, and when I'm filling it, I tell this water कि whoever is going to drink this water will feel fulfilled and happy. And the same thing I do when I fill water for my daughter who goes to school, and I fill the water bottle for my husband's workspace. I give them, and I mean I literally chant that thing to this water. उसके बाद फिर दिन भर I don't need to think about it. तो पानी में इतनी एबिलिटी होती है, इट कैन रिटेन व्हाटएवर यू आर टेलिंग इट, ठीक है, उसकी मेमोरी होती है. तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, इतना कह रहे हो उस पानी को, और उस अवेयरनेस से आपने वो रखा उस बर्तन में जहां से भी आप कंज्यूम करने वाले हो, दैट इटसेल्फ वुड क्रिएट मिरेकल. जस्ट ट्राई इट आउट. आई डू इट लाइक लिटरली एवरी डे. Perfect. Wonderful. This made me realize one thing which I started doing some time back, and I think some of our audience will relate to that, especially the younger crowd. उसमें क्या है, just block your phones in your poop time. Don't take your phones to your washroom. Do not take your phones at all. But if you're spending time in your washroom, you spend time with yourself. फोन बाहर रख के चले जाओ, बिकॉज ये हमारी आदत बन गई है, फोन साथ में जाता है. ये पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, वो हैबिचुअल हो गया कि पॉकेट में फोन रहेगा ही रहेगा. एंड cool. So that is one comedy takeaway I would like people to take. If you're taking your phones, don't take it to your washrooms, and be mindful of any activity that you're doing. Just try to be in a mindfully aware state in anything. क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी, उसमें से शायद कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए आसान होंगी, कुछ लोग शायद सब कुछ अडॉप्ट करना चाहेंगे. आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाओ तो ये सोचो कि इनमें से इन्होंने इतना बकवास की 40 मिनट, उसमें से मुझे एक चीज जो समझ आई वो ये है, एंड आई विल स्टार्ट डूइंग इट. और अपने आप से पूछो कि भाई, आर यू गिविंग टाइम टू योरसेल्फ? आर यू रिचार्जिंग योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस, इफ नॉट एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस? क्योंकि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में रखकर सोओगे, even your conscious mind is asleep, your body is asleep, but your subconscious mind is working. It would start manifesting that same problem.
तो आप सुबह उठोगे भी, इवन तो योर फिजिकल बॉडी वाज लाइंग फॉर 8 आवर्स, फिर भी आपको ऐसा लगेगा यार नींद नहीं पूरी हुई, थकान लग रही है एंड ऑल दैट। तो रात को जब सोने जा रहे हो, दैट टाइम अगर आपको मंत्र आते हैं कोई, तो कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र तो शायद सब हर इंडियन को आता है। If not that, and then any positive thought, which may be visualizing your next day, it is going to be a good day or great day, or just be thankful that you are alive. Today you are alive and your family में everyone is alive. सब कुछ जहां तहां होना चाहिए वहां है। Be thankful कि लाइफ में इंटरनेट है। किसी भी तरीके से be in gratitude state and go to bed. And first thought as soon as you get up should not be कि अरे मुझे लेट हो गया। First thought should be I am alive. Exactly. Right? I got an experience today. That is the first thought you should get up in the morning. So exactly. On this line, there is gratitude can be taken up, then that also helps in a big way. Absolutely. And जब आप हमने आज लाइव स्टार्ट करा, we were introducing our 40 day for life thing. तो उसमें आज के सेशन का भी जो मेन टॉपिक था, that was कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, you are alive, your loved ones are alive, ठीक है, बस काफी दुनिया वहां पर, you should be experiencing and practicing gratitude. Practicing gratitude, I think we missed on, but this is a very, very important aspect of self-care. अगर आप gratitude practice कर रहे हो, you're just thankful of your being, just your being, and then you can extend that कि we are thankful of our house we live in, we are thankful of the car we have, anything, of the job you have, of the food you're getting. So that is also a form of self-care and self-love. Right? In fact, on gratitude note, I mean, I know we are just up on time. Just one thing. अभी मैंने कल या परसों ही एक रील देखा, उसमें शाहरुख खान was saying कि he got to know from Saroj Khan, if you know, Saroj Khan is the choreographer, right? So he was complaining on एक फिल्म का सेट पे कि यार बहुत काम है और मेरी नींद नहीं पूरी हुई, something like that. Then Saroj Khan came and told him कि कभी नहीं कहना कि बहुत काम है और मुझे इससे प्रॉब्लम है। जब काम नहीं होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। Absolutely, absolutely. So never complain that you have so much work. जब वर्क नहीं होता उससे पूछो कि बेरोजगारी क्या होती है, उससे बड़ा स्ट्रेस नहीं होता। काम है, बी थैंकफुल कि तुम्हारे पास काम है। कितने लोगों की जॉब चली गई भाई। एग्जैक्टली और अभी ग्रेटफुल होने आओगे तो बहुत सारी चीजें हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट, cool, great. So we discuss a lot of things. What all will happen if अगर हम सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें या अगर हमारी ऑडियंस कर सके तो क्या होगा? Right. So let's start from the beginning to wrap up कि सेल्फ केयर है क्या? आपको just daily activities में you just have to be mindful of whatever you do, and there are 3 pillars to it: physical, mental and emotional well-being. You have to make sure कि आप तीनों aspects में you are fine with it, you take care of yourself, and अगर आप तीनों के लिए एक हमने तो बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्कस कर ली, बट तीनों के लिए अगर आप एक एक्टिविटी भी करना चाहो तो फिजिकल के लिए जस्ट इनकॉर्पोरेट एनी लिटिल मूवमेंट टू योर डे। आप स्टेयर्स क्लाइंब करना है, आपको डॉग को वॉक पे लेके जाना है, नेचुरल वॉक पे जाना है, पार्क में जाना है, एनी हाउ। अगर आप मतलब जिम वर्कआउट्स, योगा वर्कआउट्स, इफ यू आर डूइंग नथिंग लाइक दैट, बट अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट गो फॉर अ सिंपल वॉक, एंड उससे लॉन्जिविटी इंक्रीज होती है, लाइफ इंक्रीज होती है, एज मीनू सेड। एंड मेंटल वेलबींग के लिए जस्ट बी अवेयर in any activity that you're doing. अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, incorporate deep work into that. आप घर पे काम कर रहे हो तो ये एक्सपीरियंस की उस काम को कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है उसका। एंड इमोशनल वेलबींग के लिए जस्ट I think we didn't touch upon emotional well-being. Just a very quick tip, what would you like to say on the emotional well-being around self-care? Never sleep with a stress thought or a negative thought. क्योंकि अगर आप कोई भी चीज है, अगर लाइफ में कोई भी बड़ी भी प्रॉब्लम आएगी, तो अगर उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, देन नोट डाउन कि मैं ये कर सकती हूँ और इसमें ये हम इस टाइम में करेंगे, इस ड्यूरेशन में करेंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब जब वो मोमेंट आएगा तब वो कर लो। अगर प्रॉब्लम ये है कि भाई हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे समझा नहीं, किसी ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था, तो ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे लाइफ में, राइट? उसने अपनी इमोशन को डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं है। व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सामने वाले को समझना चाहिए, यू शुड टेल टू योरसेल्फ, आई शुड बी स्ट्रांग इनफ नॉट टू गिव द अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज फॉर द अदर पर्सन टू मेक मी हैप्पी और सैड। करेक्ट। अगर कोई कुछ कह रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो ये सोचो कि वो उनका नजरिया है, इट इज देयर परसेप्शन ऑफ वॉट एवर दे आर, right? It is not about you. It is their perception of who they are. Correct.
ना। और वो जैसे है उसे हम नहीं बदल सकते। व्हाट आई कैन डू इज कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए वो मेरे कंट्रोल में है, तो लेट मी टेक केयर ऑफ इट। करेक्ट। मेरे इमोशंस का रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे फेस इज माई टीवी स्क्रीन एंड रिमोट किसी और के पास है। उन्होंने कुछ अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, उन्होंने कुछ बुरा कह दिया तो हम दुखी हो गए। नो, ये प्रिविलेजेस अपने पास रखो। राइट राइट, अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए। द मोबाइल चार्जिंग एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डे जैसे हम अपना फोन चार्ज पे लगा रहे हैं, एवरी डे वी हैव टू चार्ज आवर सेल्स टू गो थ्रू आउट द डे हैप्पीली। एंड रात को सोते हुए जस्ट प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट थैंक योर सेल्फ कि जो भी आपके पास चीजें हैं, यू जस्ट थैंक द यूनिवर्स फॉर दैट एंड नेवर नेवर स्लीप विद अ नेगेटिव थॉट एंड डोंट टेक योर फोन्स टू योर वॉशरूम एंड so that's it. एक चीज और कहना चाहूंगी on emotional well-being. Sorry? There is one thing which I want to add on emotional well-being. Please. जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ एंड आई थिंक इट हैज हेल्प मी इमेंसली। स्तुति और निंदा एक समान। कोई आपको प्रेज कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बंदा आपको उस नजरिए से देख रहा है, उसको आप में क्वालिटी दिख रही है क्योंकि वो अच्छा है, आपने कुछ नहीं किया। और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा और इट्स नॉट प्लेजेंट टू हियर, अगेन बोथ ऑफ देम आर सेम, वो भी उसी सामने वाला का ओपिनियन है। इट इज व्हाट हुएवर वे दैट पर्सन इज। सो स्तुति और निंदा एक समान। कोई मुझे तारीफ भी करता है ना तो मैं सोचती हूँ क्योंकि वो अच्छा है इसलिए ऐसा कह रहा है, और कोई मुझे बुरा भी कहता है मुझे भाई ठीक है यार ये उनका नजरिया है, इट्स ओके। करेक्ट। एंड आई थिंक यू मेक मी रिमेम्बर एक गीता का श्लोक का चौथा चरण है विच से सर्वत्र संबुध है। आप हर सिचुएशन में आप समान रहो। कोई अच्छी सिचुएशन हो रही है, यू कीप योर सैनिटी। कोई बुरी सिचुएशन हो रही है, यू कीप योर सैनिटी। आप अपना कंट्रोल अपने पास रखो, आप अवेयर रहो हर सिचुएशन में। अप्स एंड डाउन विल एवरी टाइम गो ऑन एंड टेक सम टाइम आउट और अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगा लो, तभी आप किसी और का लगा पाओगे। और ऐसा इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसा होता है सबके लाइफ में आता है एंड एवरी वन ऑफ अस हैव आवर ओन वे ऑफ डीलिंग और कोपिंग अप दैट। इन दैट टाइम रिमेम्बर दैट दिस टू शैल पास। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ये जो भी है जितना भी बुरा है ये भी गुजर जाएगा। और जब अच्छा समय हो तभी भी यही सोचो ये गुजर जाएगा, लेट मी एंजॉय। Wonderful. Cool. So on that note, let's wrap our today's session. Thank you so much. It's been 50 minutes. Oh my God. I thought we were busy with doing it. Okay, we have a question. अगर कोई सेम बंदा यही बात डिफरेंट टाइम बोले तब should we perceive the same situation? I couldn't get the question. Did you get it? Everest Soul, can you retell your question? Like आप पूछना क्या चाह रहे हो exactly? अगर कोई सेम बंदा यही बात डिफरेंट टाइम बोले तब, डिफरेंट टाइम एज इन? हाँ, मैं भी वही डिफरेंट टाइम पे डगी कि what he wants to ask. Can you re-ask the question once? I think what he wants is कि suppose there is a clash of time जब कोई बात हो रही है and you are in some different time zone और कोई और किसी और मतलब you are in some different thought process और कोई और अपने किसी और thought process में है। कभी अच्छा कभी बुरा, something like that. Oh. Okay. मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, इन्होंने क्या पूछा एग्जैक्टली, बट लेट मी ट्राई टू आंसर इट। Okay. अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप ये सोचो कि ये टाइम गुजर जाएगा इसलिए आप उसको और एंजॉय करो। आई मीन एंजॉय एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी सोचो कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, तो जस्ट यू नो गैदर योर स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू डील विद द सिचुएशन। उस टाइम के लिए होल्ड योर पर्सन। हां, राइट, होल्ड योर। एंड एक important thing is when such situation when you cannot comprehend or something like that, we are terrible at asking for help. Yes. हमें लगता है हम ही सब मैनेज कर लेंगे, तो हम अंदर में टूट रहे होंगे फिर भी हम किसी से ये नहीं कहेंगे भाई मुझे हेल्प चाहिए, मतलब इमोशनली हेल्प चाहिए कि मेरी कोई बात सुन ले विदाउट जजिंग मी और थिंग्स लाइक दैट. So that is the situation wherein you have to, find people around you who are positive, whom you can confide into, and who can be your strength and not judge you on whatever is happening.
and give you the actually strength and courage to go through whatever you're going through. Absolutely, absolutely. ये तो मतलब बहुत ही interesting point है to end our conversation. कि there was one quotation I think I read. Okay, you're reading that question. हाँ, तो there was one thing I read कि ये भी एक skill होती है to take help when it is being given. वरना बहुत टाइम पे हमको बिल्कुल हेल्प की वो ही नहीं होती कि हेल्प क्यों लेंगे, वी डोंट वांट हेल्प, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद मैनेज कर लेंगे. बट टेकिंग हेल्प इज आल्सो स्किल एंड यू शुड प्रैक्टिस दैट मसल बिकॉज इट इज अगेन gratitude comes into it. You are very you are very lucky if someone's there to help you. You are very lucky if people are there to understand you. Go and ask them, take that help. And so the question, अच्छा, so I think रीफ्रेजिंग इज, आपने बोला कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वही बंदा डिफरेंट सिचुएशन में बुरा बोले तब क्या करना चाहिए? तो वो ही इट इज अबाउट दैट पर्सन, राइट? अगर वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है, वो उसका नजरिया है. उसके बुरा बोलने से आप बुरे थोड़े ना बन जा रहे, और उसके अच्छा बोलने से आप अच्छे नहीं हो जा रहे. हाँ, राइट. आई थिंक उन्होंने आपका स्टेटमेंट आधा सुना. आप हाँ, शायद स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई अच्छा बोल रहा है देन वो खुद अच्छे इंसान है, दैट इज वाई वो आपकी तारीफ कर रहे हैं. और अगर वो बुरा बोल रहे हैं तो वो उनका परसेप्शन है कि वो पर्टिकुलरली उस टाइम पे किसी बुरे थॉट प्रोसेस में, इसलिए वो बुरा बोल रहे हैं. जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही बुरा है. देखो, आप कौन होते हो किसी, मतलब मैं कौन होती हूँ ये जज करने वाले कि तुम बुरे हो या तुम अच्छे हो? आई एम नो बडी. एंड मुझे नहीं पता कि फ्रॉम विच लेंस यू आर लुकिंग एट मी एंड सेइंग कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ. जो मैं कह रही हूँ वो अच्छा है या बुरा है. आई पर्सनली डोंट जज पीपल. अगर कोई मेरे लिए अच्छा कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है विद द गुड इंटेंशन. ही और शी इज लुकिंग दैट क्वालिटी इन मी एंड सेइंग कि भाई आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो. कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है तो भी मुझे यही लगता है कि शायद वो बंदे का कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि this is how he is looking at this situation and he feels like that. Correct. He or she has this perception about me in this situation. It is their perception still. It has nothing to do with me. अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है कि अगर कोई आपको अच्छा कह रहा है तभी भी आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, कोई बुरा कह रहा है तभी भी आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो. That is what we have to do. There is some internet trouble at Meenu's end. We had a wonderful discussion around self-care. And I hope आप सब लोग को कुछ अच्छे takeaways मिले होंगे from this discussion. And now on that note, let's end this live. And we will see you again on next Saturday. And keep watching the stories. Keep subscribing to Meenu's channel. I am Meenu Singh, and my channel Medha Gautam, for more mindset and life coach, more mindset and life tips. Till then, take care and have a great weekend, everyone. Bye bye.